اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک دیکھیں گے کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن ہرگز نہیں تغنی یا انہم تغنی یا بچا سکیں گے انہم ان کو اموالہم ان کے اموال ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد من اللہ شیئا اس کے علاوہ اور نہ کوئی چیز انہیں بچا سکے گی واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم وقود النار جن کا ایندھن آگ ہے کدابی اور طریقہ آل فرعون یہ جو طریقہ ہے یہ آل فرعون کا والذین اور ان کا من قبلہم جو آل فرعون سے پہلے تھے ان کا طریقہ ہے اور طریقہ کیا کذبوا جھٹلانا بے آیاتنا اللہ کی آیات کو جھٹلانا یعنی ہماری آیاتوں کو کیا کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑا انہیں اللہ نے بے ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب سے واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے قل للذین کفروا قل آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہوئے ستغلبون کہ ان قریب مغلوب ہوں گے وتحشرون اور ہانکے جائیں گے الی جہنم جہنم کی طرف وبئس المہاد اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال ہرگز بچا سکیں گے نہ ان کی اولاد اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ ان کے مال بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد بچا سکے گی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے احوال اس سے پہلی آیات میں سٹارٹ میں بیان کے سورۃ آل عمران کے جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے اور ان کی یہ شان کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھنا، قیامت کے وقوع کا یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت سے کفار کے احوال کا ذکر شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ قرآن کا اسلوب آپ لوگ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذکر فرمانا ہے۔ اب جن یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی معرفت یعنی برحق ہونے کی پہچان کر لی لیکن پھر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے دلوں میں کجی یعنی بخیلت تھی، ایک طرح کا بغض تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ان کے دل مانتے تھے لیکن ان کے ذہن اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا، قرآن کی جو متشابہات آیات تھیں ان میں تعویلات کی اور پھر ان کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بے شک دنیا میں ان کے پاس مال کی بھی کثرت ہے اور اولاد کی بھی کثرت ہے لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اس میں ہے کہ علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا کہ روایت ہے ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا تو روم کے بادشاہ مجھ سے وہ سب مال واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت
निजरान के ईसाइयों के मुतालिक नाजिल हुई। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया ये आयत बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के मुतालिक नाजिल हुई, जो अपने माल और औलाद की कसरत की वजह से बड़ा फ़ख्र करते थे। तो तहकीक है कि ये आयत तमाम काफिरों को शामिल है। क्यों? क्योंकि उनके पास माल भी थे और औलाद भी थी। और पहली जो मैंने बात बताई है अबू नसरानी अबू हारसा बिन अलकमा वाली, तो उससे ये मालूम होता है कि काफिर उनको माल देते थे, तो इस डर से वो इस्लाम नहीं लाए कि हमारे पास माल आना बंद हो जाएगा। तो फिर इस आयत में माल के जिक्र को औलाद पर भी मुकद्दम किया है। औलाद वैसे ज़्यादा प्यारी होती है लेकिन आखिर में काम नहीं आती, पैसा फिर भी आखिर में काम आ जाता है। तो क्योंकि इंसान मसाइब से ख़ुद को बचाने, फितना को फैलाने, किसी का कुर्ब हासिल करने के लिए औलाद की निस्बत से ज़्यादा माल से काम लेता है और माल पर ज़्यादा एतमाद करता है। मोहब्बत बेशक औलाद से होती है लेकिन हर जगह काम माल ही आता है। तो इसकी मिसालें कुरान पाक में और जगह भी हैं। सूरत अल-सबा की आयत नंबर 37 में भी है कि और ए लोगों, ना तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको हमारा मुकर्रिब कर दे, हाँ जो शख्स ईमान लाया और नेक अमाल किए। और फिर सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 28 में भी है और यकीन रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद महज एक आजमाइश है। और फिर कुरान में सूरत अल-हदीद में भी फरमाया आयत नंबर 20 में, यकीन रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, आर्जी जीनत और तुम्हारा एक दूसरे पर फ़ख्र और माल और औलाद में ज़्यादती तलब करना है। और फिर सूरत अल-शोरा में फरमाया 88 आयत में, जिस दिन ना माल नफ़ा देगा ना बेटे नफ़ा देंगे। और फिर सूरत अल-शोरा में और इसी तरह हदीद में भी ये तमाम जितनी भी आयतें हैं ये सारी पर हक हैं। इस बात की वाज़ेह दलालत है कि क़यामत वाले दिन हमारा 1 रुपया भी काम नहीं आएगा और ना ये जिन बेटों पर फ़ख्र किया जाता है ना वो बेटे काम आएंगे। और बेटे का लफ्ज़ भी वाज़ेह किया गया है सूरत अश-शूरा के आयत नंबर 88 में कि जिस दिन ना माल नफ़ा देगा ना बेटे नफ़ा देंगे। तो अलबत्ता इंसान तिब्बी तौर पर माल की बनिस्बत औलाद से मोहब्बत रखता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ माल ही काम आता है, औलाद भी मुँह फेर लेती है। तो ये तमाम बातें। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उनका तरीका भी कौम फ़िरऔन और उनसे पहली अक़वाम के तरीक़ों की तरह है, जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है काफिरों को। और ये वईद अल्लाह का वादे की तरह है, जैसे मोमिनों से जन्नत की बशारत का वादा है, उन्हें जन्नत मिलेगी, ऐसे ही काफिरों को जहन्नम में धकेला जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वाद भी अल्लाह का है, वईद भी अल्लाह की है। तो ये दोनों बरहक हैं, किसी में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कौम फ़िरौन का ख़ास तौर पर अल्लाह ने इस आयत में ज़िक्र क्यों किया, आले फ़िरौन का? इसका ये है कि जितनी भी कौमें आईं उन तमाम ने अल्लाह की आयत को इनकार किया, उनको झुटलाया। 1-2 का ज़िक्र हम पढ़ चुके हैं, बाकियों का ज़िक्र आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो उसमें यह है कि उन्होंने क्या क्या सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी तकज़ीब की। हालांकि तौरात, ज़बूर और अंजील में वाज़ेह तौर पर आपके बारे में निशानियाँ, ख़ुसूसियात आपकी दर्ज कर दी गई, लेकिन उन्होंने उनको मिटा दिया, उनका रद्द बदल कर दिया। तो इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने उन कौमों पर उनके गुनाहों की सबब, उनके बार बार इनकार की सबब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी, आसमानी उन पर अजाब नाजिल किए। तो इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि जो लोग इन कौमों की तरह आले फ़िरऔन की तरह, और फिर फ़िरऔन का इंजाम आप सब जानते हैं कि उनको गर्क कर दिया गया समंदर में। तो अब भी जो काफिर हमारे खिलाफ हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के खिलाफ है, हम उनके साथ भी वही करेंगे जो हमने पहले काफिरों के साथ किया है। तो इसमें इमाम इब्न जरीर तिबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर
میں قریش کو شکست فاش دی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ بنو قینقاع کے بازار گئے اور آپ نے یہود کو جمع کر کے فرمایا اے جماعت یہود اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی قریش کی طرح حشر ہوگا۔ یہود نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کا ہم ایسواں سے سابقہ نہیں پڑا تھا، جب ہم سے مارکا ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہاں تم ان قریب مغلوب اور پھر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اب یہ ایک طرح کا چیلنج دے رہی ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قریش جو تھا وہ آپ کے ہم پلہ نہیں تھا، وہ آپ سے کمزور تھے اسی لیے ہار گئے، لیکن ہم وہ ہیں جو آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، تو آپ جب ہم سے لڑیں گے تو ہم آپ کو ہرا دیں گے۔ یہ چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قد بے شک کانا تھا لکم تمہارے لیے آیتن اللہ کی ایک نشانی فی فئتین التقطا اور وہ دو جماعتوں کے درمیان تھی، اور یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، فئتن ایک جماعت وہ تھی جو لڑی اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسری وہ تھی کافرۃ یرونہم جو کافر تھی، یرونہم جس کو تم دیکھ رہے تھے، مثلہم رأی العین اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، واللہ اور اللہ یؤید بنصرہ اپنی مدد حمایت پہنچاتا ہے من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ان بے شک فی ذالک یہ ہے لعبرۃ لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں پورا جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو پہلے یعنی انہوں نے جب آپ نے قریش نہیں ان کو کہا بنو قریظہ اور قینقاع کے لوگوں کو کہ ایمان لے آؤ اور اللہ کو مانو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ کا جو پہلے پالا پڑا ہے وہ لوگ آپ سے کمزور تھے، اگر ہم کیا ہیں آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، جب ہم سے پالا پڑے گا تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ مات نہیں کھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے اس کی تائید کرتا ہے، یعنی مدد کبھی بھی بندوں کے زیادہ ہونے پر، اسلحہ کے زیادہ ہونے پر، یا پھر آپ کے ظاہری سبب کے زیادہ ہونے پر منحصر نہیں ہے۔ مدد صرف تب ملے گی جب اللہ چاہے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا آپ کے پاس جتنے لوگ ہوں، جتنا اسلحہ ہو، جتنے گھوڑے ہوں، آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ جو کفار تھے ان کی تعداد تھی 985۔ کتنی تعداد تھی؟ 985، اور ان میں ابو سفیان اور ابو جہل یہ مطلب بہت زیادہ پہلوان ٹائپ کے طاقتور سپہ سالار تھے، اور 100 گھوڑ سواروں کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور تمام گھوڑ سوار لوہے میں غرق تھے، یعنی انہوں نے ہر طرح کی اپنی سیفٹی کی ہوئی تھی لوہے کی چیزوں سے۔ اور دوسرا ان کے علاوہ پیادوں میں بھی ذرہ پوش تھے، یعنی جو پیدل لوگ تھے وہ بھی ذرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد تھی 313، یعنی ان کا ایک حصہ، وہ 985 اور یہ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور ان کے ہر 4 آدمیوں کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، اور ان کے 700 اونٹ تھے، اور کل 6 ذرے اور 2 گھوڑ سوار تھے۔ تو دونوں جماعتوں کی ان صفات کو سامنے رکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ اگر موازنہ کریں تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کے ایک حصے کے برابر ہیں۔ ان کی
आदमियों की तादाद भी ज़्यादा है, उनके पास असला भी ज़्यादा है, वो लोग अपनी फुल सेफ्टी में हैं, ज़रा भी उन्होंने पहनी हुई है और वो भी जंजीर और लोहे की, और मुसलमानों के पास ऐसा कोई ज़हरी सबब मौजूद नहीं है। लेकिन जब हक और बातिल आमने सामने आया तो अल्लाह ताला ने 100 फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई, और फरिश्ते सिर्फ हौसला अफजाई करने और ये खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे कि तुम कामयाब होगी, और बाकी जितनी भी मदद की गई थी वो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से की थी, अपनी मर्जी और मंशा से की थी। और फिर हुआ ये कि 17 रमज़ान 2 हिजरी को मुसलमानों को जंग बदर में अल्लाह ताला ने फतह कामयाबी अता की, और ऐसी कामयाबी अता की कि उसके बाद मुनाफिकीन और मुशरिकीन के दिल लरस गए। कोई भी मार्का होने लगता था तो उससे पहले उनके दिल में खौफ बैठ जाता था, क्योंकि ये ज़हरी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। और इस कामयाबी के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं भी बहुत की थी और रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि या अल्लाह, आज अगर मेरे लश्कर की तादाद ख़त्म हो गई तो रूए ज़मीन पर आपका नाम लेने वाला और कोई बाकी नहीं रहेगा, तो आप अता करने वाले हैं, मुझे भी अता कीजिए, आपका वादा है और अपना वादा पूरा कीजिए। तो ये आपने अल्लाह ताला से दुआएं भी की थी। फिर ये है कि मार्काए बदर जो हुआ उसमें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां पाई जाती हैं। सबसे पहली निशानी तो तादाद की आप देख लें कि वो 985 और ये 313, उनके 700 घोड़े और हमारे सिर्फ 4 आदमियों के पास 1 घोड़ा, और उनके पास ज़र्रा असला हर चीज़ ज़हरी सबब उनके पास ज़्यादा हैं। तो इसमें यह है कि कभी भी तादाद और ज़र्रे यानी ज़हरी सबब का ज़्यादा होना कामयाबी की अलामत नहीं है। कामयाबी सिर्फ तब होगी जब अल्लाह कुन करेगा, अल्लाह कहेगा कामयाबी मिलेगी। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम्हारे पास जितनी तादाद जितना कुछ हो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों का गालिब आ जाना अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी और अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। और दूसरी इसमें जो हिकमत थी वो ये थी कि जिस रोज़ जंग होनी थी उससे 1 रात पहले जो कुफार थे वो शराब उंडेले हुए थे, उनके सामने बांदियाँ नाच रही थीं, वो खुद उसमें धुत थे, यानी वो ऐशो परस्ती में थे। इस बात का उन्हें यकीन था कि कल हम ही जीतेंगे, ये हम इनको क्या करेंगे, हरा देंगे, वही ज़हरी सबब देखकर। और दूसरी जानिब मुसलमानों के लश्कर में नमाजें पढ़ी जा रही थीं, सुबह रोज़ा रखने की तैयारियां की जा रही थीं, और अल्लाह के हुजूर फतह और नुसरत के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। और सबसे ज़्यादा खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। तो इसमें इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी लिखते हैं, रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के दिन दुआ की, ए अल्लाह अपने अहद और वादा को पूरा फरमा, ए अल्लाह अगर तू चाहे तो तेरी इबादत नहीं की जाएगी। और हज़रत अबू बकर ने आपका हाथ पकड़कर कहा, आपके लिए ये दुआ काफ़ी है, आप बाहर आएँ। हालांकि आप उस वक्त ये आयत तिलावत कर रहे थे जो सूरत अल कमर की आयत नंबर 45 है, अन करीब काफिरों का ये जत्था शिकस्त खाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागेंगे। और ये सही बुखारी की रिवायत है। ये एक नक्शा खींचा गया है कि उस दिन इस तरह अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं की गई कामयाबी के लिए। और फिर हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब बयान करते हैं, जंग बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की तरफ देखा तो वो 1000 थे और आपके असाब 313 थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ रुख किया और हाथ फैलाकर मुसलसल अल्लाह से दुआएं करते रहे, हत्ता कि आपके शानों के रदा मुबारक ढलक गई। तो आप दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया था उसको पूरा कर, ए अल्लाह तूने मुझसे जिस चीज़ का वादा किया था वो मुझको अता कर, और ए अल्लाह अगर तूने मुसलमानों की इस जमात को ख़त्म कर दिया तो तेरा नाम लेने वाला और कोई बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया
اور सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 9 और 10 नाजिल की गई। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, और कि मैं तुम्हारी 1000 लगातार आने वाले फरिश्तों से मदद करने वाला हूँ। और अल्लाह ने नज़ूल मलाइका को सिर्फ खुशखबरी बनाया ताकि उससे तुम्हारे दिल मुतमईन हो, और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। तो ये तमाम वाक़या नबी की दुआओं का कबूल होना, और इसमें दूसरी हिकमत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने की सबसे बड़ी अलामत, क्योंकि आपने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने उस वक्त आपको अता कर दिया। तो इसमें जो है ना एक और हिकमत ये थी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था कि ये फ़लाँ काफिर के गिरने की जगह है, आप ज़मीन पर इस जगह और इस जगह हाथ रखते, यानी बताते इस जगह ये काफिर गिर कर मरेगा, इस जगह ये काफिर गिर कर मरेगा। हज़रत अनस कहते हैं फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रखने की जगह से कोई काफिर मुतजाविज़ ना हुआ। जिस जगह आपने जिस काफिर का नाम लेकर हाथ रखा था वो उसी जगह पर मरा था। तो इसमें हिकमत आपके इल्म गैब की भी आती है जो अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है। तो फिर तीसरी निशानी, मुशरिकीन मक्का को मुसलमान अपने से दुगनी तादाद में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा हुआ था, तो इसीलिए वो उनको दोहरा दिखाई देने लग गया, जिसकी वजह से उन पर मुसलमानों की हैबियत तारी हुई और वो खौफजदा हो गए। वैसे वो 313 ही थे, लेकिन जब मुशरिकीन ने निगाह डाली अल्लाह की तरफ से उन्हें वो तुगने चुगने नजर आने लगे, तो उनके दिलों में खौफ आ गया कि इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको शिकस्त हो गई थी। और चौथी निशानी भी थी अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को के इत्मीनान और उनको बशारत, उनको हौसला देने के लिए फरिश्तों का नज़ूल किया था। और फरिश्तों का नज़ूल सिर्फ तमानियत कलूब की खातिर था, और लड़ाई जो थी वो मुसलमानों ने खुद ही लड़ी थी और कामयाबी अल्लाह ने दी थी। तो ये अल्लाह ताला की मदद किसी भी हाल में कहीं पर भी पहुंच सकती है। अगर अल्लाह ताला मदद करने पे आए तो फरिश्ते भी आ सकते हैं, और अगर मदद करने पे आए तो आसमान से अबाबील भी उड़कर आ सकती हैं। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जैसे चाहे जिस तरह चाहे अपने बंदों की मदद कर सकता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी हक़ के रास्ते पर चलने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं लेक्चर बंद करती हूँ, सारे घड़ी को देखते हैं। ये भाई बाजी थोड़ा तो नहीं पढ़ा रही। हाँ, सारे सबके चेहरे घड़ी की तरह होते हैं। मैं आयतें पूरी करती होती हूँ अपनी।